Vidura uvacha. Jnanam param swatmaraha prakasham. Yada ha yogeshvara ishvaraste. Vaktum bhavanor hati yati vishnor. Britya swabrityartha kritas charanti. Vidura uvacha. Jnanam param swatmaraha prakasham. Yada ha yogeshvara ishvaraste. Vaktum bhavanor hati yati vishnor. Britya swabrityartha kritas charanti. Vidura uvacha. Jnanam param swatmaraha prakasham. Yad aha yogeshvara ishvaraste. Vaktum bhavanor hati yati vishnor. Britya swabrityartha kritas charanti. Vaktum bhavanor
Vidura Uvacha. Vidura said, Jnanam, knowledge, Param, transcendental, Swaatma, regarding the self, Raha, mystery, Prakasham, enlightening, Yat, that which, Aha, said, Yoga Ishvaraha, the master of all mystics, Ishvaraha, the Lord, Te, unto you, Vaktum, to narrate, Bhavan, your good self, Na, unto me, Arhati, deserve, Yat, for, he, reason of, Vishnu, of Lord Vishnu, Britya, servants, Swabritya Arthakritaha, for the interest of their servants, Charanti, do wander. Vidura said, O Uddhava, because the servants of Lord Vishnu, the Lord, wander in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord himself. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The servants of the Lord are actually the servants of society. They have no interest in human society other than to enlighten it in transcendental knowledge. They are interested in imparting knowledge of the Lord. Real transcendental knowledge descends in the disciplic succession from the Lord to Uddhava, from Uddhava to Vidura, and so on. Such supreme transcendental knowledge is not possible to achieve by the process of imperfect speculation as performed by the so-called learned, mundane wranglers. Vidura was anxious to know from Uddhava that confidential knowledge known as Paramam Stitim, in which the Lord is known by his transcendental pastimes. Although Vidura was older than Uddhava, he was anxious to become a servant of Uddhava in the transcendental relationship. This formula of transcendental disciplic succession is taught by Lord Chaitanya also. Lord Chaitanya advises that one receive transcendental knowledge from anyone, whether a Brahmin or a Shudra, a householder or a sannyasi, provided that person is factually conversant with the science of Krishna. A person who knows the science of Krishna is factually a bona fide spiritual master.
Om Ajnantimidandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juthapadakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrachatam Sahakana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Safadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahakana Lalita Sri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktabinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Vastatya Deshatarine. Vidura said, O Uddhava, because the servants of Vishnu, the Lord, wander in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord Himself. We are reading today from Srimad Bhagvatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya, Text 25. Hare Krishna. I am sincerely grateful and honored to have been asked to make some attempt to serve all of the assembled devotees by reading from this designated verse of Srimad Bhagavatam. And I am feeling most unqualified Vidura is inquiring from Uddhava. Beginning with this most revealing truth, that the servants of Vishnu the Lord wander
into the interest of serving others. And Srila Prabhupada in his purport, he begins, the servants of the Lord are actually the servants of society. They have no interest in human society other than to enlighten in transcendental knowledge. It is almost as Vidura is giving us the prayer that we should be forever offering to Srila Prabhupada and the beloved servants of his servants. In a unprecedented way, Srila Prabhupada wandered around the world, I believe 12 times, disseminating this transcendental knowledge. And by his influence in every major language of the world, in all continents of the world, his books, Srimad Bhagvatam, Bhagavad Gita, the realizations of all the acharyas and parampara have been and are being distributed by tens and millions. And as Vidura is humbling himself before Uddhava, he's begging to be enlightened. The lesson is so deep and profound, it's almost impossible unless we're Paramhamsas to understand what's really being said here. Who is Vidura to be asking this question? Didn't even need a microphone. We are so insignificant. Previously, Srila Prabhupada explains Vidura is one of the 12 Mahajans. Mahajano yena gadasa bandha. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught that we cannot understand the path of perfection or realize the perfection of life, loving devotional service to Krishna, by any other means outside of following in the footsteps of the great souls, the Mahajans. We have so many Vedic literatures. There are so many activities to be performed on the basis of the teachings. But they all become pleasing to Krishna when we are applying these principles by following in the footsteps of the great souls. And among the Mahajans, and the person who actually spoke this verse of who the Mahajans are, one of the very inconceivable persons is Maharaj. How to follow in the footsteps of Maharaj?
we have to actually go deep into this understanding, and I think Vidura is teaching us. In his post, internally, he's a fully surrendered soul. Whatever he's doing in the Yamaloka with the Yamadutas, it's with a very pure devotion to assist the Lord in his service within this material creation. But he's considered Lord of Death, and he with his team, they keep track of all the sinful activities of everyone. And it's all on record. And however good, what are they called, hacker you may be or know, you cannot meddle with the records of Yamaraj. But Krishna tells, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam praja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyame masacha. When we surrender to Krishna, by Krishna's grace, all those files are deleted. Daiviheshu gunamayi mama maya duratyaya. This material nature of three modes is very difficult to overcome. But one who takes shelter of Krishna, by Krishna's grace we can cross beyond it. And in the 6th canto of Srimad Bhagvatam, in reference to Ajamil, he committed so many sinful activities. And the Yamadutas were right there at his bedside at the moment of his death. They're punctual. There's not much talk about them being late. They were right there to drag the subtle body and the eternal soul within that subtle body to be punished. And just the expression on their face was part of the punishment, to see the Yamadutas. And yet the Vishnu Dutas immediately arrived. They came a little later. It seems like devotees sometimes have their perfect timing. They came just a little late so that Ajamil could see the wrath of the Yamadutas. And by doing it this way, he would take very seriously what they were about to say. And they didn't talk to him, they talked to the Yamadutas. He chanted the name of Narayan. But the Yamadutas, they're actually quite learned. They're students of Yamaraj, of Mahajan, in their own ways. He was calling out for his son. He wasn't calling out for the Lord. The name of Narayan is none different than Narayan. And the Yamadutas had to go back to Yamaraj. Who are these people we saw today? How does anyone have a power greater than you? We have seen your power over all living beings and humanity within this universe. And those beautiful verses from the 6th canto, Yamaraj is not only glorifying the holy name of Krishna, but he's glorifying every devotee and every living being who is chanting the names of the Lord.
He orders Yamaduta, never, unless you want to be punished by me, and we'll all get punished by Lord, never bring to me anyone who has bowed his head before a Vaishnav. Never bring to me anyone who has chanted the names of the Lord. So yes, we hear so many things about Yamaraj, but in Srimad Bhagvatam we get this wonderful glimpse of the wisdom and love of Krishna and faith in Krishna that Yamaraj has. Srila Prabhupada describes that there was a sage named Mandavya Muni. And some thieves, they robbed some place, and the police were looking for him, and they hid in the ashram of Mandavya Muni. So the police caught them all and arrested the sage also, and sentenced him to be pierced to death with a lance. And they were just about to do it. Here is Mandavya Muni about to be exterminated, about to be killed. When the king heard about it, he stopped it and let him free. Such a powerful Muni, he went to Yamaraj. How could you let this happen to me? Yamaraj, it's not that he necessarily has to check the records. He's so intelligent, he knows. He keeps track. He said, when you were a little boy, you pierced an innocent ant to death with a straw. The Muni, he said, how could you hold me so responsible when I'm an innocent little child? I didn't know better. He was so angry. He cursed Yamaraj. To lose his position and to take a lower birth in this world. Yamaraj became Vidura. And here, where he's not performing his role, his duties in the service of the Lord, we see what is his actual nature in Vidura. It's very interesting. This discussion we're reading today is between Uddhava and Vidura. And it's taking place on the bank of Yamuna. Yamaraj is the son of Surya, and his beloved sister is Yamuna, who comes as the river. And they're both performing their service. And in Vrindavan, especially in Mathura, there's big festivals celebrating the love between the brother and sister, Yamaraj and Yamuna. They have so much respect and so much affection for each other, but they have very different natures. Yamaraj, his service is justice, rectification, punishment. And Yamuna, the goddess of the river. Yamuna asked Yamaraj in Mathura for a benediction because she honored him as elder brother and he was honoring her as sister. She asked for a benediction.
whoever sincerely comes to take shelter of me and bathes in me or drinks my water, give the blessing, they never have to see you. That's a transcendental way of praising her brother. Because she's actually glorifying your service is so complete and thorough and pleasing to the Lord. And she forgives sins. She purifies the heart. All she's doing is purifying and forgiving, and all her brother is doing is punishing and rectifying. This balance between justice and this type of kindness is actually how Krishna has created the universe. This balance, and it has to be very carefully understood. And when part of the beginning of the real balance between justice and forgiveness is to follow in the footsteps of Yamaraj and his sister Yamuna, which is to actually really appreciate people who have a different service than ourselves. Can anyone imagine Yamuna giving orders to the Yamadutas? She's the softest, sweetest. She's an expansion of the Gopi Vishaka, who's an expansion of Srimati Radharani, who's flowing simply to give pleasure to Krishna. And by giving pleasure to Krishna, after Krishna and Sri Radharani left this world, she's giving people Krishna Prema. So here we find Yamaraj, when he gets time off, he's just expressing his heart as it is, as Vidura. How Vidura, in his ecstasy of loving service to Krishna, how he suffered, how he was cast into so many complexities, perplexities. He was the son of Vyasadeva and a maidservant of Ambika, the queen of Vitrachavirya, and he had two brothers, Dhritarashtra and Pandu. But because of the nature of his birth, he was not given any inheritance of the kingdom, either in the property or in his role or position. He watched what Dhritarashtra and his sons Duryodhana were doing. And he was always helping. He was right there in the inner core of Dhritarashtra's meetings. And he was seeing what was going on, and he was always speaking the truth. But he was always everyone's well-wisher, even if he totally disagreed. When the plan was to burn alive in the house of lack, the 5 Pandavas and their mother, Kunti, it was Vidura who sent Yudhisthira Maharaj the information in a very, very secret, super intelligent way, and how to escape. And at the same time, he was telling Dhritarashtra, don't do this.
during the gambling match. He was chastising Dhritarashtra. This is cheating. Don't do this. But Dhritarashtra was always listening to his son Duryodhana. In that assembly where Draupadi was stripped, Vidura was the best friend, well-wisher, and uncle of the Pandavas, and at the same time, in a very honest and truthful way, he was always a well-wisher of Duryodhana and Dhritarashtra. And after all this, and out of his affection and deep concern for his brother, he was never what we would call a yes man, just yes, yes, yes. He didn't quit his service, but he was very honest. He was very blunt. And one day, when he saw the battle of Kurukshetra was about to happen, he said to Dhritarashtra, your son, Duryodhana, is offense personified. His envy for the Pandavas will be the cause of the destruction of your entire dynasty. Come out of his control. Duryodhana heard this. He was so angry. He chastised Vidura. You son of a kept servant, who is taking everything from us, living only by us, and now you're speaking like this, betraying us? Get out from here. We will give you nothing more than the breath that you breathe. Srimad Bhagvatam describes that these harsh words were like arrows that touched the core of Vidura's heart. He was pained by it. It doesn't say he, but at the same time as being deeply pained, he was happy. He was grateful. Now he's officially being released and he could go out on pilgrimage. He had to leave his comfortable home. He had to leave his family. He was going to live years just wandering, living under trees. But this is the arrangement of the Lord. I could just go and be with saintly people, and I could be alone in the forest, and I can engage in devotional service. What would ordinarily be taken as the most horrible injustice, he took as a blessing, even though it was painful to the core of his heart. And in this way he was happy. And for years and years he wandered. And here we find he's meeting on the bank of Yamuna, Uddhava. And transcendental sound vibration, the reality is the sound vibration is non-different than the actual pastime. And these pastimes, it's almost end, are beyond time and beyond space. So when we're hearing, we're there. Uddhav, from his earliest childhood, he loved Krishna and nothing but Krishna. Srila Prabhupada describes he played with dolls of Krishna.
And when his mother would call him for breakfast, he didn't care. When she called him for lunch, he didn't care. He just wanted to serve Krishna. Krishna has proclaimed Uddhava as the best of the devotees. He was Krishna's intimate friend. Krishna would consult him in intimate subjects. They would sit together. They would lay down together sometimes and talk. They would walk together. They would make plans together. And out of the supreme love for Uddhava, Krishna sent him to Vrindavan with his message. Who else could he send with his message of love for the Brajavasis but Uddhava? But actually he was sending Uddhava so Uddhava could actually learn from the Gopas and Gopis what is the most deep, pure, loving devotional service for Krishna. This is described in Srimad Bhagvatam. It's described by our great acharyas. Seeing the love of gopis, Sri Radha, and actually all the residents of Vrindavan, Uddhava was thinking, feeling, and knowing in his own heart that he had no love at all. It was insignificant in compared to the love of these devotees. And their love, as His Holiness Devamrita Swami Maharaj so wonderfully described yesterday, was their love and separation. Uddhava was about to go back to Mathura to be with Krishna. He was going to be his constant associate. But yet he was praying, let me be a gulmalata, a little shrub of grass near Govardhan Hill. Because gopas, they may then step upon me. I can't ask the gopis for the dust of their lotus feet, because I'm a great royal prince of the Yadu dynasty and they're simple cowherd girls. He didn't want to embarrass them. Sometimes we just grab dust from people's feet. But he honored them so much. To get the dust of his feet, he was a powerful rishi, prince. He could have taken it. But just to not hurt them, to express his profound reverence and appreciation for their devotion. He wanted to live as a piece of grass forever, where the gopis may step on him. This was his way of understanding greatness. And how Uddhava is humbling himself before the residents of Vrindavan. And when Krishna came, and when Uddhava came back, what Srila Prabhupada is saying, Krishna and our parampara entrusts the devotees with this transcendental knowledge for the well-being of humanity. Srila Prabhupada writes that Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjuna, and then he further developed those teachings in the Uddhava Gita, the 11th canto of Srimad Bhagavatam. And he told Uddhava, you go to Badrikashram, because the Yadu dynasty was going to be finished and Krishna was going to leave this world. And somehow or other, Uddhava stayed back to be with Krishna at that moment. And at that time, Maitreya Rishi, a disciple of Parasara Muni, the father of Vyasadeva,
he happened to come, and the two of them received the final instructions and blessings of Krishna. And then Krishna left the world. Uddhava's separation. He saw the nature of gopis and H.H.Radhanath's separation when he was in Vrindavan. But now Krishna had left him in the world. His separation, so inconceivable. He began to wander toward Badrikashram. And by Krishna's grace, on bank of Yamuna, he is now meeting Vidura. And Vidura, he had already heard about the news of the battle of Kurukshetra and Krishna's disappearance and the Yadu's disappearance. But still, he inquired about it. And Srila Prabhupada writes, his inquiry was psychological, not practical. That's a very deep statement. It was not an inquiry based on knowledge and information. It was an inquiry based on love and separation. And as Devamrita Maharaj and Bhakti Chaitanya Maharaj and Bhanu Maharaj the last few days were discussing, that these pastimes are ever new when we understand that they're non-different than Krishna. Material life, puna punaschara padacharvanana. We hear something, we get tired of. But these pastimes, to the extent we actually love Krishna, they become newer and newer, and we become more and more eager to hear them. Srila Prabhupada would quote Bhagavad Gita, Dehino smin yata dehe, with newer and newer enthusiasm. Just to show mercy to us, to inform us, we're not our bodies, but also, these are directly the words of Krishna. What to speak of Krishna's pastimes? So Uddhava, it is described, he went into a deep state of love and separation. He was paralyzed. He couldn't talk. He couldn't move. And then, immersed in remembrance of Krishna and feeling the presence of Krishna in that separation, he spoke. He began his answer to Vidura about, Vidura was inquiring about all the different residents of Mathura and Dwarka and how is Vasudeva and Devaki, and he was praising Krishna in so many ways. Uddhava replied that the sun of the world, Lord Krishna, has now set. And now our home is being swallowed by the great serpent of time. What can I even say about what we do? And then for the next two chapters of Srimad Bhagavatam, Uddhava is remembering Krishna's pastimes, Krishna's qualities, and the philosophical truths of who Krishna is. And we have been swallowed by this, by time. And it brings us to today's verse.
where after hearing Uddhava's wonderful glorifications and wonderful love for Krishna, which is unparalleled, Vidura is asking him for transcendental knowledge. Now Vidura is the age of Uddhava's father. He's his uncle. And although Uddhava knows everything most intimately, because Maitreya Rishi was of the same age of Vidura, he was like a father in age to Uddhava. Uddhava is instructing Vidura, you should go to Maitreya Rishi to learn these teachings. Because what Krishna taught me, he taught Maitreya Rishi. Such detachment. And this attachment is based on not just withdrawing ourselves from the center, but in bhakti, detachment is when we put Krishna in the center. And when we put those who are representing Krishna in the center, Mad Bhakta Pujabhyadika, Krishna's most pleased when we honor, worship, and serve those who love him. Maitreya, he may have previously been mixed with jnana and other aspects of the yoga system. After being blessed by Krishna, Uddhava, who was Krishna's innermost best friend, trained by gopis, go to Maitreya Rishi. Learn from him. And it's such a beautiful example. Srila Prabhupada is describing here the devotees of the Lord wander the earth because they are entrusted with the transcendental knowledge of loving devotional service to the Lord. And how are they doing? Wherever anyone is rendering loving service and spreading the holy names of the Lord, to appreciate, to honor, to want to be the servant of servant, that is more dear to the Lord than when we get caught up in our ego to do it ourselves. Srila Prabhupada would look out at all of his students, say, you are all representatives of my Guru Maharaj. In one recording he said, by the grace of my Guru Maharaj, he has sent all of you to help me to serve him. Now I am entrusting you with the responsibility to help me in the service to my Guru Maharaj. To love Srila Prabhupada, how much we should love anybody who's doing that for Srila Prabhupada. How much that will love Srila Prabhupada and please him. And when Srila Prabhupada's talking about cooperation, that has a general meaning, which means don't fight. That's like a minimal. But actually, this idea of cooperation based on the teachings of Krishna consciousness, it means to express pure love for Krishna. The way Uddhava is toward Maitreya, and even Vidura. And when Vidura goes to Maitreya, in the next verses, Vidura is glorifying Maitreya, and Maitreya is glorifying Vidura. And
They're all in separation from Krishna, and here in Navadvip Dham, Lord Chaitanya, I'm going to end within 2-3 minutes, honest. How did he start the Sankirtan movement? In the mood of intense separation. He came back from Gaya. And the Nimai Pandit that was very, very, super confident of everything he was teaching and saying, he was now so humble. He said, I want to meet the devotees to reveal the sorrows of my heart. Come to Suklambar Brahmachari's house tomorrow. He had a little hut on the bank of the Ganges. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was just crying out, where is Krishna? Where is Krishna? He said to Gadadhar Pandit, you are so fortunate. You have been loving and serving Krishna from your earliest childhood, but I wasted my life with mundane logic and knowledge. And finally, I saw Krishna, and he left me. Total humility. He was crying, where is Krishna? And when Lord Chaitanya went back to his house, Sachimata saw Lord Chaitanya, Nimai, her son, literally, according to Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavatam, he flooded the courtyard of the house with his tears, crying out, where is Krishna? It was on the basis of this love and separation of the gopis in Vrindavan that Uddhava personally witnessed. It was in that mood that Lord Chaitanya Mahaprabhu began the Sankirtan movement. His students would come around to learn grammar from him, and he would just talk about Krishna and the names of Krishna. And every single word of every book, he gave a purport to glorify the name of Krishna. And sometimes he would be in such ecstasy doing so. And then he would come out of his ecstasy and ask the students, did I give a good lesson? They said, it was a great lesson, but you didn't talk about the subject, you just talked about the name of Krishna. And this went through many phases. And finally he wrapped up his books and said, I can't teach anything but the glories of the names of Krishna anymore. So he said, I bless you all, find another teacher. And they all wrapped up their books and said, after having a teacher like you, there's nobody else who could teach us. We are going to follow you. And at that point, Lord Gauranga Prabhu taught them how to chant the names of Krishna. And they all had kirtan. And the people of Navadvip were astounded. That's how our Sankirtan movement began. And I'm going to end with this. One time a student, very great scholarly student, he challenged Lord Chaitanya. You're talking about the name of Krishna with such glorification. The Vedas must be exaggerating just to get us to chant. And when Lord Chaitanya heard that challenge, he quoted this verse, Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. Krishna has incarnated in his name. Krishna is non-different than his name. Absolutely non-different than his holy names. How can you exaggerate? Who could possibly even approach appropriately the glories of the Lord? How can we exaggerate the glories of Radha and Krishna in the spiritual world, who are the creator, maintainer, and destroyer of all universes?
and the ultimate source of all love and happiness. Achintya Shakti. If we can never exaggerate the glories of Krishna, and Krishna is non-different than his name, we can never exaggerate the glories of the names. So everyone, take shelter. Harinama, 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 Yavakevalam, Kolonasteva, Steva, Gataranya, of the chanting of Krishna's holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. H.H.Radhanath Swami Maharaj ki jai! Prabhupada ki jai! हरे कृष्णा माता जी रीडिंग शुरू करेंगे। मैं स्टॉप करती हूँ। हाँ 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 वही वही चैप्टर 12। हाँ कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा हरे चैप्टर हरि 12 प्रभु अपना वीडियो ऑन अध्याय। कर दीजिए। हरि प्रभु हरि प्रभु को बोलिए पढ़ने को। नहीं वीडियो वीडियो ऑन ऑन कर। कर दीजिए। हाँ वीडियो ऑन कीजिए सभी। हाँ माता जी शुरू कर दीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। और हरे हरे 12th प्रभु। चैप्टर का पीडीएफ मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप पे। ये प्रभु जी हरे कृष्णा नरहरि प्रभु यस माता जी। आप रीड करेंगे ना? हाँ जरूर। जी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अध्याय उनका वीडियो ऑन थे वहाँ 12। नरहरि प्रभु। नरहरि प्रभु जी अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ रख दिया माता जी रख हरि दिया बोल रख माता दिया। जी। इतनी देर आप वो पढ़ लीजिए ना, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए 12वें चैप्टर का। ठीक है। हाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य में आदि लीला के 12वें अध्याय का सार दिया है। इस अध्याय में अद्वैताचार्य के अनुयायियों का वर्णन हुआ है। शैम्पू तो को दिया नहीं मैंने। माता जी प्लीज सब म्यूट पे रखिए। अगर आपके ऐसे नॉइज आ रहा है तो म्यूट पे रखिए। जिनमें से अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद के अनुयायियों को शुद्ध अनुयायी माना जाता है, क्योंकि उन्हें अद्वैताचार्य द्वारा दिए गए दर्शन का नवनीत प्राप्त हुआ था। अद्वैताचार्य के अन्य तथाकथित वंशजों और अनुयायियों को मान्यता प्राप्त नहीं है। इस अध्याय में अद्वैताचार्य के पुत्र गोपाल मिश्र और उनके सेवक कमलाकांत विश्वास की भी कहानी दी हुई है। गोपाल अपने बाल्यकाल में जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर बुहारते समय मूर्छित हो गए थे और इस तरह उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। कमलाकांत विश्वास की कथा इस रूप में आती है कि
उसने प्रताप रुद्र महाराज से अद्वैताचार्य का ऋण चुकाने के लिए 300 रुपए उधार लिए थे, और जब चैतन्य महाप्रभु को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे खूब फटकारा। तब अद्वैताचार्य के प्रार्थना करने पर कमलाकांत विश्वास शुद्ध हुए थे। अद्वैताचार्य के वंशजों का वर्णन करने के बाद इस अध्याय के अंत में गदाधर पंडित गोस्वामी के अनुयायियों का विवरण दिया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु पढ़िए अभी। आवाज नहीं आ रहा है नरहरि प्रभु, म्यूट है आप। पीडीएफ टाकले का श्री जी माता जी? हाँ 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 किया, चालू किया है। अद्वैत यज भंगास्तन्या सागर भूतोखिलान् अद्वैताग्राब्ज भृंगास्तान्। सार असार भूत अखिलान। नहीं माता जी, वो आधा आधा पढ़ना है। हाँ, हाँ वो श्लोक है वाला। श्लोक के समान भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हुए ऐसा पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु जी, हाँ वापस से ठीक है पढ़िए। मैडम। हाँ पढ़ता हूँ। आवाज आ रहा है बराबर? आ रहा है आप? हाँ, अद्वैतायंज भंगास्तन् अद्वैत अद्वैताग्राब्ज भृंगास्तान्। सारा सारभूतोखिलान् सारा सारभूतोऽखिलान् हित्वा सारान् सारभूतो हित्वा सारभूत नैमि चैतन्य जीवनात्। नैमि चैतन्य जीवन जीवनः। हरे कृष्णा। हाँ। नाम अद्वैत प्रभु के अनुयायी दो प्रकार के थे, कुछ तो असली थे और कुछ नकली। मैं नकली अनुयायियों का बहिष्कार करते हुए श्री अद्वैत आचार्य के असली अनुयायियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके जीवन और प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 2। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जय जय महाप्रभु श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य। जय जय नित्यानंद जय अद्वैत धन्य। जय 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 नित्यानंद नित्यानंद जय जय अद्वैत अद्वैत धन्य। धन्य। और ये सब भक्त लोग माता जी का प्लीज। श्री चैतन्य हरे महाप्रभु की कृष्णा। जय। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। हाँ, कोई श्री पढ़ रहा था चैतन्य पढ़। महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, और जय हो श्री अद्वैत प्रभु की। ये सभी धन्य हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। श्री चैतन्य द्वितीय चैतन्य मनोतरो स्कंद रूपिणः द्वितीय श्रीमद्चन्द्रस्य स्कन्धारोपिणः। रूपनुः श्रीमद्वैत चंद्रस्य श्रीमद अद्वैत चंद्रस्य श्रीमद्वैतचन्द्रस्य शाखारूपान् गणानुनोम शाखारूपाङ्गनानाम्। माता जी स्पॉटलाइट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। मैं श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट हरि सर्वजन बोल। अद्वैत प्रभु को प्रभु जी आए तथा लगता है उनकी प्रभु जी। स्पॉटलाइट माता जी प्रभु अरे जी आए। माता प्रभु जी प्रभु आए हैं। जी प्रभु जी को स्पॉटलाइट कीजिए spotlight। प्लीज। हाँ, पढ़ लो पूरा कर लो। ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं ना माता जी? क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन हाँ दो प्रभु जी। नंबर हाँ 3 नंबर श्लोक 3 का अच्छा ट्रांसलेशन। 3 नंबर श्लोक। अच्छा, सबको अच्छा लगा? हरि सबको अच्छा लगा? अच्छा बोल। लगा। हरि बोल। हरि बोल। आज महाराज भी वो मूड में थे कि 2 मिनट करके बढ़ा रहे थे ना। और आज महाराज हरि नाम के बारे में ज्यादा बोल रहे थे कि कैसे हरि नाम ही सब कुछ है ना। तो मुझे लगा कि हमारे जूम के डिवोटीज जो, मैं तो उतना नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जो डिवोटीज 64 कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। एक्चुअली आप लोग महाराज से दूर भी होके पास में हैं। हे गोविंद।
अब इधर रीडिंग हरे करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी बीच बीच में ना महाराज के लेक्चर को भी थोड़ा सा एलोबरेट करना। अभी हाँ, मेरे आज पास जो नहीं है ना, बताया ये नहीं है ना, इसके नोट्स चाहिए मेरे को, मैं नोट्स नहीं बनाए ना कोई। आपके दिमाग में है प्रभु जी सब। तो ये कौन सा अध्याय शुरू किया अभी? बैठ 12 प्रभु जी, ये हुआ था ना अद्वैत आचार्य के बर्थडे, तब किया हो गया? था ये हमने किया था ना पहले अद्वैत आचार्य के अपीयरेंस हाँ पे लेकिन कोई। तो पूरा नहीं किया था ना, इसमें गदाधर का भी विस्तार है। तो एक 40 श्लोक किया था हम लोगों ने। कुछ किया था इसीलिए बोला। हाँ पूरा अध्याय नहीं किया था। कल पूरा फिर क्या करते, जहां तक किया था वहां से आगे करें, फिर 13वां नहीं, अध्याय। हाँ नहीं प्रभु जी शुरू से ही करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अद्वैत आचार्य का पूरा हो गया था और गदाधर का बचा था, ऐसा था कि भक्ति निष्ठा माता जी अद्वैत आचार्य का पूरा हुआ था। हुआ था शायद। यस प्रभु जी, अद्वैताचार्य का पूरा हुआ था। गदाधर पंडित का भी हुआ था। गदाधर पंडित का भी हो गया था। पूरा अध्याय हो गया था प्रभु जी, ऐसे लगता है, मैं तो अटेंड किया। 96 श्लोक। नहीं पूरा अध्याय नहीं हुआ था माता जी। प्रभु जी अद्वैताचार्य तक हुआ था, फिर गदाधर पंडित का रह गया। प्रभु जी शुरू से ही कर लेते हैं ना, फास्ट फास्ट। ठीक है, फिर हम इम्पोर्टेंट भाग ही पढ़ेंगे, जिस सब का नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो पहले तो इसका सारांश है। सारांश पढ़ा आप लोगों ने? हाँ पढ़ा। भक्ति निष्ठा माता जी। सारांश में ये बताया गया है कि अद्वैत आचार्य के जो पुत्र थे, 6 पुत्र थे, में से 3 जो है वो भक्ति के मार्ग को पालन किए और 3 जो है मायावादी बन गए। आज हमारा और सौभाग्य है, हमारे बीच इसके सार्थक प्रभु ज्वाइन हुए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा है, महाराज का लेक्चर मिला। हर्ष प्रभु भी आज जाने वाले थे, लेकिन भगवान ने उनको टिकट नहीं दी। उनकी अथॉरिटी ने बोला कि एकादशी करके ही आना। हालांकि वो बहुत ईगर थे कि मायापुर से जाके माया में जाए, लेकिन भगवान ने तो 2 दिन और रोक दिया। टिकट ही नहीं मिली। मैंने पूरा ट्राई किया, टिकट बुक ही नहीं। हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं जितना हो सके एकादशी तक। तो ये मतलब ये 6 पुत्र थे। 3 का नाम, 3 थे जो वैष्णव बने, 3 जो है मायावादी बने ना। जो 3 वैष्णव बने उनके नाम क्या क्या थे? एक अच्युतानंद और श्री गोपाल और कृष्णा मिश्र, और 3 जो है मायावादी बन गए। और फिर वो कहानी बताई गई है ना कि कमलाकांत विश्वास ने लेटर लिखा था राजा प्रताप रुद्र को। क्या लेटर लिखा था? तो भगवान विष्णु ही है अद्वैताचार्य भगवान है, लेकिन उनको 300 रुपए का लोन देना। हाँ, अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार हैं, तो 300 रुपए का लोन बाकी है। तो ये देख करके तो बड़ा आश्चर्य लगा। चैतन्य महाप्रभु उनको डांटा। तो कितने 3 श्लोक पढ़ लिए आप लोगों ने अभी? तीसरा चालू था। ट्रांसलेशन है। कौन सा, तीसरा या चौथा चल रहा था? तीसरा हाँ गाने माता, चल रहा नहीं पढ़ा। जब माता जी पढ़ रहे थे पढ़ लिया आपने पूरा माता जी, या फिर से पढ़ेंगे? कोई पढ़ रहा था। हाँ पढ़े आप, हो गया माता जी पढ़ लिए तीसरा वाला? मैं श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा सर्व यशस्वी अद्वैत प्रभु को तथा उनकी उपशाखा रूपी
उनके अनुयायियों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्लोका। हरे कृष्ण। आज सार्थक प्रभु हमारे मीटिंग कंडक्ट करेंगे साथ में थोड़ी देर के लिए। श्लोका रीडिंग नरहरि प्रभु और सार्थक प्रभु रोटेशन में पढ़ते रहेंगे, हर्ष प्रभु भी, और परपट जो है सार्थक प्रभु जी पढ़ लेंगे। यस, श्लोका नंबर 4 पढ़िए सार्थक। द्वितीय स्कंदर आचार्य गोसाई वृक्षर द्वितीय स्कंद आचार्य गोसाई करायत साका हैला तारा लेखा नानी व्रत शाखा हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री अद्वैत प्रभु उस वृक्ष की द्वितीय बड़ी शाखा थे। उस वृक्ष की अनेक उप शाखाएं हैं, किंतु उन सभी का उल्लेख कर सकना असंभव है। हरे कृष्ण। चैतन्य मालिर कृपा जलरे से चने चैतन्य चई जले पुष्ट स्कंद बाढ़े दिने दिने जल पुष्पे बाड़े दिने दिने। ये अनुवाद पढ़े प्लीज। श्री चैतन्य महाप्रभु माली भी थे, और ज्यों-ज्यों वे अपनी कृपा रूपी जल से इस वृक्ष को सींचते, त्यों-त्यों नित्य प्रति उसकी सारी शाखाएं तथा उप शाखाएं बढ़ती जाती। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तेई स्कंद यथा प्रेमे फल उपजिला श्री कृष्ण प्रेम फले जगत भरिला। जय कृष्ण प्रेम फले जगत भरिला। हरे कृष्णा। इस चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे, वे इतने अधिक थे कि सारा संसार ही कृष्ण प्रेम से अप्लावित हो उठा। वर्ष नंबर 7। सही जल स्कंदे करे शाखा ते सचार जल स्कंदे करे शाखा ते सचार फले फूले बाड़े शाखा हैल विस्तार पढ़िए माता जी लोग। ज्यों ज्यों तना तथा शाखाएं सींची गई, त्यों त्यों शाखाएं तथा उप शाखाएं बहुतायत से बढ़ती गई, और यह वृक्ष फलों तथा फूलों से लद गया। हरे कृष्ण प्रभु। प्रथमेत एकमत आचार्य गण पाछे दुई मत हैला देवेर कारण। प्रारंभ में पढ़ी प्रारंभ में अद्वैत आचार्य के सारे अनुयायी एक ही मत को मानते थे, किंतु बाद में वे संयोग से दो भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य, देवीरे कारण शब्द इंगित करता है कि भाग्य से या ईश्वर की इच्छा से अद्वैत आचार्य के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए। एक ही आचार्य के शिष्यों के बीच ऐसा विरोध गौड़िया मठ के सदस्यों में पाया जाता है। प्रारंभ में ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोश दशक श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की उपस्थिति में सारे शिष्यों में एक मत था, किंतु उनके तिरुभाव के तुरंत बाद उनमें मतभेद शुरू हो गया। एक पक्ष तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का पूरा पालन करता रहा, किंतु दूसरे पक्ष ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने निजी मत गढ़ लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने प्रयाण के समय अपने सारे शिष्यों से एक परिचालक समिति, गवर्निंग बॉडी बनाकर मिलकर प्रचार कार्य करने की अपील की थी। उन्होंने किसी एक विशेष व्यक्ति को अगला आचार्य बनाने का आदेश नहीं दिया था, किंतु उनके शरीर छोड़ते ही उनके प्रमुख सचिवों ने बिना अधिकार के आचार्य पद हथियाने की योजना बना डाली, और इस बात को लेकर वे दो दलों में इस पर बढ़ गए कि अगला आचार्य कौन हो।
फलतः दोनों ही दल आसार अर्थात व्यर्थ थे, क्योंकि अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करने के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि गुरु का आदेश था कि परिचालक समिति बनाई जाए और गौड़िया मठ का प्रचार कार्य संपन्न किया जाए, फिर भी दोनों अवैध पक्षों में मुकदमा चल पड़ा, जो 40 वर्षों बाद भी बिना किसी फैसले के चल रहा है। इसलिए हम किसी पक्ष से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों दलों ने गौड़िया मठ संस्थान की भौतिक संपत्ति बांटने में व्यस्त रहने के कारण प्रचार कार्य बंद कर दिया था, इसलिए हमने समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों के संरक्षण में चैतन्य संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करने के लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर तथा भक्ति विनोद ठाकुर के व्रत को अपनाया और हम देख रहे हैं कि हमारा अकिंचन प्रयास सफल रहा है। हमने उन सिद्धांतों का पालन किया है जिन्हें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता के श्लोक वैश्वास्पद का बुद्धि एक ही गुरुनंदना की व्याख्या में दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस आदेश के अनुसार यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करे। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की सफलता का रहस्य शिष्य द्वारा गुरु के आदेशों का दृढ़ विश्वास रखना है। वेदों द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य त्वकथिता हार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जो व्यक्ति गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों पर अटूट श्रद्धा रखता है, उसे वैदिक ज्ञान में सफलता का रहस्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार इसी सिद्धांत के अनुसार किया जा रहा है। इसलिए विरोधी असुरों के अनेक व्यवधानों के बावजूद हमारा प्रचार कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है, क्योंकि हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के सकारात्मक सहायता मिल रही है। हर काम का मूल्यांकन उसके फल से करना चाहिए। स्वघोषित आचार्य दल के सदस्य जिन्होंने गौड़िया मठ की संपत्ति हत्याई थी, संतुष्ट तो हैं, किंतु वे प्रचार कार्य में कोई प्रगति नहीं कर सके। अतएव उनके कार्यों के परिणाम के अनुसार उन्हें असार या व्यर्थ कहा जाएगा। जबकि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की सफलता गुरु तथा गौरांग की अनुगामी होने से दिन प्रतिदिन सारे संसार में बढ़ती जा रही है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहते थे कि अधिक से अधिक पुस्तकें छापी जाए और विश्व भर में वितरित की जाए। हमने इस कार्य को करने का यथाशक्ति प्रयास किया है और हमें आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कहत आचार्य आज्ञा कहत स्वतंत्र कहत स्वतंत्र स्वमत कल्पना करे दैव परतंत्र कल्पना करे दैव परतंत्र। कोई अनुवाद पढ़े प्लीज। हरे कृष्णा। कुछ शिष्यों ने आचार्य के आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया और कुछ अन्य दैवी माया के वशीभूत होकर अपना स्वतंत्र मत गढ़ने के कारण भटक गए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, यह श्लोक भटकाव की शुरुआत का वर्णन करता है। जब शिष्यगण गुरु के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करते तो तुरंत दो मत हो जाते हैं, किंतु गुरु के मत से भिन्न कोई भी मत व्यर्थ असर होता है। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिकवादी आधार पर गढ़े गए विचारों को प्रविष्ट नहीं करने दिया जा सकता। यही भटकाव है। भौतिक विचारों में आध्यात्मिक उन्नति समंजित करने के लिए कोई स्थान नहीं है। हरे श्लोक नंबर 10। आचार्य मत सही मत सारा अरे अज्ञा लांगी चले से तारा आशर। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ही जीवंत सिद्धांत है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह तुरंत व्यर्थ असार हो जाता है। हरे कृष्ण। यह श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मत है। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं वे भगवान की इच्छा को पूरा करने में उपयोगी होते हैं, तो जो गुरु के आदेशों को से भटक जाते हैं वे असार हैं। श्लोक नंबर 11। आसारे नामे यहाँ नहीं प्रयोजन भेद जानी बारे करी एकत्र गणन। जो आशा है उनका नाम लेना।
पढ़िए माता जी। जो आसार है उनका नाम लेना व्यर्थ है। मैंने उसका उल्लेख केवल उपयोगी भक्तों के अंतर दिखलाने के लिए किया है। हरे कृष्णा। नंबर 12 ध्यान राशि मापे यही छे पाटन सहिते ते पाटना उड़ाना संस्कारा करिते पहले हरे कृष्णा। धान पुआल के साथ मिला रहता है और धान को पुलाव से अलग करने के लिए उसे हवा देनी पड़ती है। हरे कृष्णा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा दिया गया यह उदाहरण अत्यंत सटीक गौड़िया मठ के सदस्यों पर ऐसी ही विधि लागू होती है। भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के शिष्य तो अनेक हैं, किंतु यह निर्णय करने के लिए कि वास्तव में कौन उनका शिष्य है और उन्हें उपयोगी तथा आसार में विभाजित करने के लिए ऐसे शिष्यों द्वारा गुरु की इच्छा पूरी करने वाले कार्यकलापों को जानना होगा। भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने भारत के बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को फैलाने का भरसक प्रयत्न किया। जब वे जीवित थे तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने के लिए शिष्यों को भारत से बाहर के देशों में भेजने के लिए प्रोत्साहन देते थे, किंतु इन शिष्यों को सफलता नहीं मिली क्योंकि वे लोग विदेशों में अपने संप्रदाय का प्रचार करने के प्रति वास्तव में गंभीर नहीं थे। वे तो विदेशों में जाने का श्रेय मात्र लूटना चाहते थे और भारत ने उसी बल पर अपने आप को विदेश से लौटते प्रचारक के रूप में विज्ञापित करना चाहते। उनके सन्यासियों ने प्रचार की इस दिखावटी विधि विगत 80 वर्षों से भी अधिक समय से अपना रखी है, किंतु इसमें से कोई भी कृष्ण भावनामृत के असली संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में नहीं कर पाया। वे भारत लौटकर यह झूठा विज्ञापन करते थे कि उन्होंने सारे विदेशियों को वेदांत तथा कृष्ण भावनामृत के विचारों वाला बना दिया है। इसके बाद वे भारत में चंदा एकत्र करके विलासी जीवन बिताने में मग्न हो जाते गए। जिस प्रकार व्यर्थ पुआल से धान अलग करने के लिए हवा देना पड़ती है, उसी तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा संस्तुत विधि स्वीकार करके यह बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि कौन असली विश्व प्रचारक है और कौन व्यर्थ है। माता जी, मैं प्रभु जी मैं तेज तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मतलब लाइक नहीं, ठीक है प्रभु, ठीक है। थोड़ा स्लो चलो प्रभु जी थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्लो। थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो। ठीक है। नेक्स्ट तो श्लोका नंबर 13 अच्युतानंद बड़ शाखा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु। अच्युतानंद बड़ा शाखा आचार्य नंदन अजन्म सेविला। यस प्रभु जी पढ़िए। हाँ, अजन्म सेविला ते ही चैतन्य चरण आचरण सेविला तो हो चैतन्य शरण। पढ़े प्लीज। अद्वैत आचार्य की एक विशाल शाखा थे। उनके पुत्र अच्युतानंद वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहे। हरे कृष्ण प्रभु। श्लोका नंबर 14 पहले रख लेना चाहिए, खा लेना चाहिए ना। सायरा गुरु केशव भारती चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती हे पिटार वाक्य सुनी दुःख पाहिला अति। जय पितार वाक्य सुनी दुःख पाहिल अति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जब अच्युतानंद ने अपने पिता से यह सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे तो वे अत्यधिक अप्रसन्न हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये मतलब एक्चुअली अच्युतानंद जो है वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, तो वो कैसे किसी के गुरु, उनका कोई गुरु कैसे हो सकता है। तो ये लीला पहले भी हमने समझाई थी। एक्चुअली अच्युतानंद शुद्ध भक्त थे, तो भगवान के तत्व को जानते थे, इसीलिए बोले कि ये कैसे आप समझ। जगत गुरु ते तुम्ही कर ऐसे उपदेश, जगत गुरु तुम्ही कर ऐसे उपदेश।
तुम्हारे ए उपदेश नष्ट है तुम्हारे उपदेश उपदेशे नष्ट हरे कृष्णा। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपका यह उपदेश कि केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, सारे देश को बर्बाद कर देगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रदीप प्रभु श्लोका पढ़ेंगे आप? हाँ, यस प्रभु। प्रदीप प्रभु हम्पी से होके आए जस्ट ना? हाय। कभी कभी आप आज ही आए कि कल आए? हाँ, आज सुबह पहुंचे बजे 7 बजे। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर ना तो हनुमान जैसे छलांग लगाने की इच्छा हो रही है। कुछ आप कुछ आपकी बताएंगे जगह के बारे में बताइए, हम्पी के स्पॉटलाइट करिए प्रदीप प्रभु पे। प्रदीप प्रभु जस्ट थोड़ा बताइए हनुमान जी के स्थान के बारे में। प्रभु जी, वहाँ पे हमने अंजनाद्रि पर्वत गए प्रभु जी, वहाँ पे ऊपर जहाँ पे ये होता है क्या स्पॉटलाइट होता है? हाँ, हो गया स्पॉटलाइट। हाँ हो गया। हाँ बताइए। प्रभु जी, हम्पी वो स्थान है, वो किष्किंधा क्षेत्र है प्रभु जी, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है। वहाँ पे अंजनाद्रि पर्वत है, जहाँ पे सीढ़ियों चढ़ते जाते हैं प्रभु जी। तो वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है हनुमान जी, और वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता हनुमान का भी विग्रह है। और वहाँ पे एक पत्थर है जहाँ पे वो फ्लोटिंग स्टोन है प्रभु जी, अब तक वो प्रिजर्व्ड है वहाँ पे। वो भी देखा प्रभु जी। और वहाँ पे ऋषि मुख पर्वत, जहाँ पे अ, वो मातंग ऋषि उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पे वाली वो आ नहीं पा रहे थे, वो उनको श्राप दिया गया था, अगर वो आए तो वो उनको वो मर जाएंगे ऐसे। तो बहुत सुंदर स्थान था प्रभु जी। और वहाँ पे शबरी जी का गुफा भी देखा पंपा सरोवर के पास, जहाँ पे वो राम जी के लिए मतलब वो राम जी का नाम जप करते करते वो वेट कर रहे थे राम जी को। तो कौन 13 कौन साल कौन वेट कर? शबरी प्रभु जी, वो शबरी गुफा में प्रभु जी, पंपा सरोवर के पास। तो 13 साल ऐसे सुना गया, 13 साल के बाद राम जी वहां पे आए दर्शन देने के लिए। तो मातंग ऋषि उनके मतलब निर्देशन पे वो वहां पे बैठ के जप किया था प्रभु जी राम जी की। जय जय। तो वो उनका हम भी जा सकते हैं क्या वहाँ पे? आप हमारा अरेंजमेंट करना होगा। यस प्रभु जी। हम भी 12 साल से वेट कर रहे हैं जाने के लिए। राधानाथ महाराज लेके गए थे ना यात्रा वहाँ पे एक बार? हाँ यस यस। आई थिंक इट वाज 2009 में या 10 में गए थे, कोई 10 साल। जय जय। कितने लोग जाना चाहेंगे हम्पी? बोलो हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 2-3 मिनट्स और बोल। और बोल। हाँ और मतलब वहां पे ज्यादा कथा किया था भाई व्रज कृष्ण प्रभु ने, मतलब बहुत धूप तक ज्यादा हमने ये नहीं किया, बाहर नहीं गए, लेकिन कथा ज्यादा सुना। कैसे भगवान सुग्रीव को भी और वाली जी को भी उद्धार करते हैं। तो अलग अलग तरीके से उद्धार करते हैं, वाली जी को मार के उद्धार करते हैं, लेकिन सुग्रीव को लक्ष्मण के द्वारा, मतलब लक्ष्मण वहां पे गुरु बनते हैं और गुरु के द्वारा उनको सीख मिलती है। तो भगवान की कृपा अलग, मतलब दूसरे दूसरे भक्तों का अलग अलग तरीके से मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलता है भगवान की इच्छा से होता है। तो ज्यादा कथा किया, और विरूपाक्ष टेम्पल वो भी देखा भाई। और विजय विट्ठल जो विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय उन्होंने जो वो पूरा बनाया था, वो भी दर्शन किया भाई। और वो एक कहानी है, वहां पे एक बार कृष्णदेवराय वहां पे जो उनका महल है वहां पे पंढरपुर से विट्ठल जी को लाया था पूजी। तो वहां पे स्थापना किया था, वहां पे पूजा हुआ था। फिर उसके बाद विट्ठल जी ने बोला कि मुझे यहाँ से अच्छा पंढरपुर अच्छा लगता है, तो फिर से पंढरपुर उसको मतलब लेके गए थे पूजी। वो भी एक स्थान है पूजी।
जय जय हरि बोल जय। थैंक यू। तो थैंक यू। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ अगर ना हम लोग ये अद्वैत आचार्य का अध्याय अगर पूरा से करेंगे तो फिर आज पूरा नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा हम वो गदाधर का जो बचा हुआ था ना वही करते हैं, क्योंकि ये तो कहानी सब हो गया है ना। तो सारांश कहाँ बता दीजिए नहीं तो प्रभु जी, हाँ सारांश में बता देना थोड़ा, जो नहीं होंगे उनके। सारांश ये है कि बेसिकली अद्वैत आचार्य ना एक इम्पोर्टेंट कहानी है जो एक कमलाकांत विश्वास की कहानी है। कमलाकांत विश्वास जो है वो अद्वैत आचार्य के सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने एक ऐसा लेटर लिखा, किसको लिखा था लेटर वो? राजा प्रताप रुद्र, चैतन्य महाप्रभु को, नहीं राजा प्रताप रुद्र को राजा लिख के प्रताप भेजा रुद्र था। को लिखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को हाथ में आ गया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में आया वो लेटर। उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि चैतन्य अद्वैत आचार्य अवतार हैं महाविष्णु के, और फिर आगे लिखा उनका 300 रुपये का लोन बाकी है। चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से हुए, बोले कि अगर भगवान के अवतार हैं उनका लोन कैसे जाना होगा, और उसको बोल दो मेरे सामने नहीं आ सकते। फिर ये बात जब मालूम पड़ी तो बहुत दुखी हो गए। कि अद्वैत आचार्य ने समझाया कि आपको तो बड़ी कृपा मिल गई, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हुई थी। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कमलाकांत को बाद में बुला के समझाया कि संसारी लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए। इसे भी डिस्कस किया था ना हमने, संसारी लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा आगे जाके अभी इस पे आ जाऊंगा, श्लोका नंबर गोपाल की कहानी 50 श्लोका नंबर 65 या 66 तक हो गया था। किसी को एग्जैक्टली याद है कहाँ तक हुआ था? ठीक है, हम 65 चैतन्य महाप्रभु के जो ये अद्वैत आचार्य की शाखा का अंत करने के बाद 66 पे आ जाइए। 66 प्रभु 66 वाला मिल गया आपको? हाँ मिल गया प्रभु। मैं अभी 2 श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद नरहरि प्रभु पढ़ेंगे। माली दत्त जल अद्वैत स्कंद योगाय, मारी दत्त जल अद्वैत स्कंद योगाय, तेई जले जिये शाखा फूल फल पाया। जय शाखा फल फूल पाया। अद्वैत आचार्य की शाखा को मूल माली थे चैतन्य महाप्रभु द्वारा जल प्राप्त हुआ। इस तरह उपशाखाओं का प्रतिपालन हुआ और प्रचुर फल और फूल लगे गए। मतलब अद्वैत आचार्य की शाखा का माली कौन है? जो पानी देने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और उनको तो प्रतिपालन हुआ, प्रचुर फल और फूल लगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? अद्वैत आचार्य की जो शाखाएं हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रदत्त जल से फली फूली, उन्हें प्रामाणिक मानना चाहिए। मतलब अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन जो ब्रांचेस चैतन्य महाप्रभु द्वारा जल से बड़े हुए उनको प्रामाणिक मानना चाहिए। जैसे कि इसके पूर्व बताया गया, अद्वैत आचार्य के प्रतिनिधि में 2 समूह में बंट गए। एक थे प्रामाणिक शाखाएं, दूसरे थे बनावटी शाखाएं। उनको मिल गया था जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत का पालन किया वे फली फूले। सबको मिल गया। तात्पर्य मिलेगा 66 के। अभी आप प्रभु नरहरि प्रभु आप पढ़ेंगे श्लोका 67। हाँ पढ़ता हूँ। बिहार मध्य मिल गया। नरहरि प्रभु पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ता हूँ। बिहार मध्य माली पाचे कोण शाखा गण, बिहार मध्ये माली शाखा गण, न माने चैतन्य माली दुर्दैव कारण,
न माने न माने चैतन्य माने हृदय देव कारण। चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद कुछ शाखाएं महाप्रभु द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटक गए। मतलब क्या है कि देखो, एक तो होता है जब भगवान धरती पे थे तो कुछ शाखाएं रहे, भगवान चले जाने के बाद वो शाखाएं अलग अलग हो। सिजाइला जियाइला तारे न मानिला, तारे स्कंद क्रुद्ध हैला, उस शाखाओं ने उस तने को स्वीकार नहीं किया जो संपूर्ण वृक्ष का जीवन था तथा पालन करता था। इस प्रकार जब एक कृतज्ञ बन गई तो मूल तना उन पर क्रुद्ध हो गया। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मूल तना कौन है? मूल तना चैतन्य महाप्रभु है। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पे अद्वैत आचार्य। तो जब उन्होंने मूल तना को नहीं स्वीकार किया तो वो चैतन्य प्रभु बहुत गुस्से हो गए। क्रुद्ध हैया स्कंद तारे जल न संचारे, जला भावे कुश कृष सुख सुखाई अमरे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उन पर अपनी कृपा रूपी जल नहीं छिड़काया और धीरे धीरे वे मुरझाकर मर गई। हाँ, भगवान की कृपा जो है उन पर नहीं पड़ी। और कोई डिवोटीज हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा? आज तो 30 डिवोटी है, सबको चांस मिला। कोई पढ़ता ही नहीं है प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप अगर नहीं पढ़े तो जो डिवोटीज पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। भक्ति माता जी, अनघा माता जी, नारायण प्रभु हैं। नारायण प्रभु, प्रदीप प्रभु श्लोका रीडिंग करें बस। यस, प्रदीप प्रभु श्लोका पढ़िए 2-3। यस, चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ सम, चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ सम, जीवते मृत से मैले दंडे यमा, जीवते मृत से मैले दंड यमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावना विहीन पुरुष शुष्क काठ या मृत शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। वह जीवित होकर भी मृत माना जाता है और मरने के बाद उसे यमराज दंडित करते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा पॉइंट होता है, जो कृष्ण भावना से विहित है पालन करते मन्नत आप करिए। क्या बताएंगे? ये कृष्ण भावना से विहीन व्यक्ति है वो मरे हुए के बराबर। इन्हें अगर आपको दिखता है आप प्रयागराज में जा रहे हैं, बेंगलोर में जा रहे हैं, आपकी कौन सा कंपनी? इंटेल में कोई व्यक्ति है जो जप नहीं कर रहा, भगवान का नाम नहीं ले रहा, उसको क्या बोलना चाहिए? वो जलता फिरता मुर्दा है। बोलना नहीं चाहिए, बोलते आपको कंपनी बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब कि those who are not Krishna conscious, they are declared a moving corpses। तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद भागवत के भगवान का अरेंजमेंट है। यमराज का कहानी राधानाथ महाराज बता रहे थे। यमराज भी सेवा कर, सेवा बड़ी विचित्र है। लोगों को लाके दंडित करना। आप पहुंचे थे उसके पहले? तो यमराज का कितना डिफिकल्ट सेवा है, लेकिन वो भी सेवा परफेक्ट है। उसकी बहन की सेवा परफेक्ट है। कोई डिवोटीज होते हैं जिनको जस्टिस देना पड़ता है, यू नो, कोई किसी ने गलती की है तो सजा देनी पड़ती है, और कोई जो खाली प्रीचिंग करते हैं, दया दिखाते हैं। तो दोनों में बैलेंस होना, महाराज बोल रहे थे, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बताया गया कि जो कृष्ण भावना विहीन पुरुष है वो शाश्क काठ या मृत शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो जीवित होकर भी मृत माना जाता है और मरने के बाद यमराज दंडित करते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रीमद भागवत के 6 स्कंद 3 अध्याय में मृत्यु के अध्यक्ष यमराज अपने सहायकों को बताते हैं कि किस तरह से वे लोगों को पकड़ कर ले आए। वो बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसकी जीवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों और पवित्र नाम का कभी वर्णन नहीं करते, इसका कृष्ण उनके चरणों का स्मरण करके उनसे नहीं होता, जिनका सिर कभी भगवान के सामने झुकता नहीं है, उसको अवश्य मेरे पास लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभक्तों को दंड के लिए यमराज के पास लेकर जाते हैं और तब भौतिक प्रकृति उन्हें तरह तरह के शरीर प्रदान करते हैं। मतलब जब मरने के बाद क्या होता है, अलग अलग बॉडी बनते हैं। मृत्यु के बाद अर्थात
देहांतर होने पर अभक्तों को न्याय के लिए यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज के निर्णय से पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्रकृति उन्हें शरीर प्रदान करती है। महाराज बोलते हैं हैकिंग नहीं चलता। हैकिंग बोलते हैं ना कि हरीश प्रभु को मालूम है सब चीजें, वो करते नहीं है लेकिन उनको मालूम है क्या होता है हैकिंग ना। हैकिंग मतलब कि दूसरे के अकाउंट को आप पैसा ट्रांसफर कर दो, मतलब ट्रांसफर कर मतलब उसमें से ट्रांसफर कर लो, या किसी का डिटेल बदल दो। लेकिन अब मैंने कहानी बताई थी ना कि एक बार एक यमदूत आते हैं किसी को लेने के लिए, तो वो ये तो मजाक की कहानी, तो वो ये क्या करता है, यमदूत आए लेने तो उनके शरबत में थोड़ा सा कुछ नशा पहन करता है, इससे यमदूत बेहोश हो जाते हैं। और तुरंत वो यमदूत के हाथ से पूरा पेपर, समय ये मोबाइल नहीं होते थे, पेपर पे लिस्ट आता था। तो पेपर पे देखा और उसका नाम सबसे ऊपर है, उस पर लिखा था क्या, फर्स्ट नाम था सार्थक का। सार्थक ने क्या किया, वो लिस्ट को लेके लास्ट कर दिया। फिर उसको होश आया यमदूत को, तो बोला अरे इतना अच्छा शब्द बुलाया, तभी मैं इतना खुश हूँ, मैं नीचे से नाम शुरू करना, तेरा नाम नहीं लेता। सर ये मजाक की कहानी है, लेकिन मतलब फैक्ट क्या है कि जो फिक्स्ड हो तो बदल नहीं सकते। तो आगे देखिए तात्पर्य में क्या लिखा है। यमराज के निर्णय से पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्रकृति ने शरीर प्रदान कर दिया। यह देहांतर की विधि है, अर्थात आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर स्थानांतरण करना है। तथापि कृष्ण भावनामय भक्तगण यमराज के निर्णय के पात्र नहीं होते। भक्तों के लिए मार्ग खुला रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। शरीर त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम, भक्त को दूसरा भौतिक शरीर नहीं धारण करना पड़ता, क्योंकि यह आध्यात्मिक शरीर पाकर भगवत धाम वापस जाता है। यमराज का दंड तो उसके निमित्त है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। ये कृष्ण भावना भावित है, उसको तो भगवान रक्षा कर। ओके, श्लोका पढ़ेंगे कौन अभी? प्रदीप प्रभु, एक प्रदीप प्रभु एक नारी प्रभु, आपको पढ़ना है? हाँ, केवल ये गण प्रति न है दंड, चैतन्य विमुख जय सेत पाषंड, न केवल अद्वैत आचार्य के दिग्भ्रमित वंशज, अपितु जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के विरुद्ध है उसे नास्तिक मानना चाहिए, और वह यमराज के दंड का पात्र है। हाँ, नारायण हरि प्रभु पढ़ रहे थे। हरि बोल। आप कभी कभी म्यूट हो गया था, कभी कभी वो बोलते हैं। आज बंद तो नहीं हुआ? अभी आ रहा है, आ रहा है। नारायण हरि प्रभु का तो कोई चांस ही नहीं है वापस आने का दुनिया में, क्योंकि नाम में नारायण हरि है ना। उनके वाइफ राधिका चरण माते दिन रात नारायण नारायण हरि हरि, है ना। अजाम ने तो खाली नारायण बोला तो भगवान मिल गए। माता जी तो नारायण हरि हरि कितने सारे कंफर्म टिकट है। तो यहाँ क्या पढ़ा प्रभु जी ने कि जो केवल अद्वैत आचार्य के दिग्भ्रमित वंशज भी नहीं, जो भी महाप्रभु के विरुद्ध है उसको नास्तिक मानना चाहिए। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ना अभी 10 बज गए हैं और मेरे को अध्याय पूरा करना है 10:30 तक, तो आधे घंटे में मुझे 30 श्लोक पढ़ने हैं। तो थोड़ा कि पंडित की तपस्वी की गृहयति, चैतन्य विमुख जय तारये गति, चैतन्य विमुख चाहे हाँ पढ़िए माता जी पढ़िए। चाहे कोई पंडित हो, महान तपस्वी हो अथवा सफल गृहस्थ हो या प्रसिद्ध सन्यासी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के विरुद्ध है तो उसे यमराज द्वारा दिए जाने वाला कष्ट भोगना ही होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मतलब यहाँ पे बताया गया कि महाप्रभु के विरुद्ध होगा तो सन्यासी भी हो तो सजा दी जाएगी, है ना। जय जय लीला जय जय लैला श्री अच्युतानंदे रमता, ये लीला श्री महाभागवत श्री आचार्य अद्वैत आचार्य के जिन वंशजों ने श्री
अच्युतानंद के मार्ग को अपनाया वे सब के सब महान भक्त हुए। हरे कृष्णा। थैंक यू। पंडरीनाथ प्रभु का अभी बाकी है, माता जी उसको बोलिए, कल भी नहीं ज्वाइन हुए, आज भी नहीं, उसको बोलिए वो ऑफिस से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा पेशेंट्स आएंगे। क्लिनिक में है। हाँ उसको क्लिनिक से भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, हाँ तो फिर ज्यादा बोलती पेशेंट हूँ। जल्दी ठीक हो जाएंगे। अद्वैत आचार्य के वंश ने अच्युतानंद के मार्ग को अपनाया, वे सब महान भक्त हो गए। तो इसमें बहुत लंबा परपट है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं। मतलब बेसिक चीज क्या बताई गई है कि जो गुरु की आज्ञा को पालन करता है वो महान भक्त बनता है, जो उससे अलग जाते हैं वो दूर हो जाते हैं। तात्पर्य पर बताते हैं, जा रे देखा तारे कह, देखो तात्पर्य का लास्ट पार्ट क्या दिया है, जा रे देखो तारे कह कृष्ण, जो भी मिलता है उसको कृष्ण भक्ति का उपदेश है। से आचार्य कृपा भाजन, से आचार्य कृपा भाजन, अनायास से पाइला से चैतन्य चरण। आचार्य की कृपा से जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का दृढ़ता से पालन किया, तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसका किसका आश्रय ग्रहण किया, अगर वो आश्रय ग्रहण कर दे कृपा में। अच्युतेर जय मत से मत सार, अच्युतेर यही मत से मत सार, छार खार, आरयत मत सब छार। निकलता है अच्युतानंद का मार्ग ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जिन लोगों ने इस मार्ग को नहीं पालन किया वे तितर बितर हो गए। अच्युतानंद कौन है? अद्वैताचार्य के बेटे, तो वो फॉलो करें। ऐसे हमारे लिए इसका मीनिंग क्या है, जो प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं उनको ही सफलता मिलेगी, जो नहीं फॉलो करते वो अलग हो। से आचार्य प्राणे मोरे कोटि नमस्कार, से आचार्य गाने मोरा कोटि नमस्कार। अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन जहार, अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन। अतः मैं अच्युतानंद के उन असली अनुगामियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिनके जीवन धार श्री चैतन्य महाप्रभु थे। हाँ, अच्युतानंद के फॉलोअर को कोटि कोटि नमस्कार। यही तो कहिला आचार्य गोसाई रगन, यही तो कहिला आचार्य गोसाई रगन, संक्षेप गणना, तीन स्कंद साकेर संक्षेप गणना। मैंने अद्वैत आचार्य के वंश के 3 शाखाओं का वर्णन किया। कौन सी 3 शाखा? अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र और शाखा उपशाखा तारा नहीं गणना, शाखा उपशाखा तारा नहीं गणना, किछु मात्र किछु मात्र कही करी दर्शन। शाखा उपशाखा है, उन सबके पूर्ण रूप से गणना करना बहुत कठिन है। मैंने पूरे तने की शाखा और उपशाखा की झांकी मात्र प्रस्तुत की है। अभी गदाधर का शुरू होता है। ये गदाधर का नहीं पढ़ा था ना हम लोगों ने? नहीं पढ़ा था प्रभु। हाँ, तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? 15 मिनट है, और उसमें पहले पूरा कर लेते हैं, फिर कल से ना नया टॉपिक शुरू कर सकते। श्री गदाधर पंडित शाखा ते महोत्तम, श्री गदाधर पंडित विजय गणना, तारा उपशाखा की हरे कृष्णा का वर्णन करने के बाद अब मैं गदाधर पंडित के कुछ वंशज का वर्णन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रधान शाखाओं में से। माता जी टाइम बचाने के लिए मैं ही पढ़ रहा हूँ। मधुमालती माता जी आपने एक भी नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं प्रभु जी। फिर आपके बिना तो क्लास फेल हो जाते हैं। तो ठीक है एक वाला आप पढ़ लीजिए। आप लेट ज्वाइन हुए क्या आज? नहीं लेट नहीं, जो शुरू है, लेकिन पढ़ने को नहीं मिलता था, काम था घर में। घर में काम था। अच्छा, एक पढ़ लीजिए, क्योंकि ना मैं जल्दी एंड करना चाहता हूँ। 10:30 बजे मेरा और एक मीटिंग है। चले। शाखा श्रेष्ठ ध्रुवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी, शाखा श्रेष्ठ ध्रुवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी, हरिदास ब्रह्मचारी, भागवत हरिदास ब्रह्मचारी। श्री गदाधर पंडित की मुख्य शाखाएं थी, एक श्री ध्रुवानंद, दूसरा श्रीधर ब्रह्मचारी, तीसरा हरिदास ब्रह्मचारी तथा चौथा रघुनाथ भगवताचार्य। बेसिकली हम क्या करें, गदाधर के ब्रांचेस बताएंगे। 4 नाम हो गए, और गौर गुण दीपिका में बताया गया है तात्पर्य में, ध्रुवानंद ब्रह्मचारी का पूर्व जन्म में कौन था? ललिता थे। और श्रीधर ब्रह्मचारी क्या है? चंद्रलतिका गोपी। अनंत आचार्य कवि दत्त मिश्र नयन, अनंत आचार्य कवि दत्त मिश्र नयन, गंगा
मंत्री मामू ठाकुर कंठाभरण, गंगा मंत्री ये सब 5वें अनंताचार्य, 6ठे कविदत्त, 7वें नयन मिश्र, 8वें गंगा मंत्री, 9वें ममू ठाकुर, 10वां कंठाभरण। गौर गणोदय लिपि में बताया गया तात्पर्य, कविदत्त को कलकंठी गोपी बताया गया। नयन मिश्रा क्या है, कौन सी गोपी? नित्य मंजरी गोपी। और गंगा मंत्री कौन है? चंद्रिका गोपी। मामू ठाकुर का असली नाम क्या है? जगन्नाथ चक्रवर्ती। जगन्नाथ चक्रवर्ती। वे चैतन्य महाप्रभु के पितामह नीलांबर चक्रवर्ती के भांजे थे। बंगाल के मामा का रिश्ता पूर्व बंगाल और उड़ीसा के मामू हो जाता है। बंगाल के मामा का उड़ीसा में मामू बोलते हैं। तो जगन्नाथ चक्रवर्ती मामू या मामा ठाकुर कहलाते हैं। मामू ठाकुर का निवास स्थान फरीदपुर जिले में मागबोड़ा में था। और गदाधर के तिरुभाव के बाद मामू ठाकुर जगन्नाथपुरी के तोटा गोपीनाथ के महंत बन गए। कुछ वैष्णवों के अनुसार मामू ठाकुर पहले रूपमंजरी के नाम से विख्यात। मामू ठाकुर के अनुयायी में कौन है? रघुनाथ गोस्वामी, रामचंद्र, राधा वल्लभ, कृष्ण जीवन, श्याम सुंदर, शांतामणि, हरिनाथ, नवीन, चंद्रमती लाल, दयामयी, कुंज बिहारी। कंठाभरण का मूल नाम है चतुराई। और वो कृष्ण लीला में कौन सी गोपी थी? कंठाभरण गोपाली। गोपी। भूगर्भ गोसाइयार भागवत दास, भूगर्भ गोसाइयार भागवत दास, वृंदावन वास। यही दो वृंदावन निवास। की 11वीं शाखा है भूगर्भ गोस्वामी, 12वीं शाखा है भागवत दास। ये दोनों वृंदावन में आकर रहने लगे। अभी खाली 5 पेज बचे। तात्पर्य, भूगर्भ गोस्वामी का पहले नाम था प्रेम मंजरी। वे लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिर में से गोकुलानंद मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? लोकनाथ गोस्वामी। 7 मंदिर कौन से हैं? क्या नाम है? देखो, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर तथा गोकुला मंदिर। वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़ महाशय, वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़ महाशय, प्रेममय वल्लभ चैतन्य दास, कृष्ण प्रेममय। 13वीं शाखा थी वाणीनाथ ब्रह्मचारी, 14वीं शाखा है वल्लभ चैतन्य। दोनों महापुरुष कृष्ण प्रेम से पूजित थे। लीला में वाणीनाथ ब्रह्मचारी का वर्णन है। ये कौन बोल रहा है? वल्लभ चैतन्य के शिष्य कौन है? नलिनी मोहन गोस्वामी ने नवद्वीप में मदन गोपाल का मंदिर स्थापित। श्रीनाथ चक्रवर्ती आर उद्धव दास, श्रीनाथ चक्रवर्ती जगन्नाथ दास, चक्रवर्ती है 15वां, उद्धव है 16वां, जीता मित्र 17वां और 18वां है जगन्नाथ दास। तात्पर्य बहुत लंबा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं अनुभाष्य में, शाखा निर्णय में श्रीनाथ चक्रवर्ती को सब सद्गुणों की खान और भगवान कृष्ण की सेवा में पटु बनाते हैं। इस प्रकार श्लोक 35 में उल्लेख है कि उद्धव दास सबको भगवत प्रेम वितरित करने में निपुण थे। और गौर गणोदय जी को बताया, जीता मित्र कौन थे? श्याम मंजरी। जीता मित्र ने एक किताब लिखी है कृष्ण माधुर्य। जगन्नाथ दास ढाका के निकट विक्रमपुर के निवासी थे। उनका जन्म स्थान है काष्टकाटा या काटेड़िया नाम है। उनके वंश है आड़ियल, कामरपाड़ा और पाई पकड़ हुआ था पाड़ा गांव में रहे। यशो मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर के पुजारी आड़ियल गांव के गोस्वामी है। 64 सखियों में से वे चित्रा देवी गोपी की सहायिका तिलकिनी सैबल का भी नाम है तिलक। पंच की सूची है राम नरसिम्हा, राम गोपाल, रामचंद्र, सनातन, मुक्ताराम, गोपीनाथ, राखालाराज और माधव लक्ष्मीकांत। शाखा निर्णय के अनुसार जगन्नाथ दास ने त्रिपुरा जिला अथवा त्रिपुर जिले में हरे कृष्ण का प्रचार किया। श्री हरि आचार्य सादीपुरी गोपाल, श्री हरि आचार्य ब्रह्मचारी पुष्प गोपाल, कृष्णदास ब्रह्मचारी है हरि आचार्य, 20वां है सादीपुरी, 21वां है कृष्णदास
और 22वां है पुष्प गोपाल। पुष्प गोपाल। मतलब रिपीट मत करिए। तात्पर्य गौर गुणोदय दीपिका में 196 और 263 में उल्लेख किया है। हरि आचार्य पहले कौन सी गोपी थी? कालाक्षी। सादीपुरिया गोपाल पूर्व बंगाल में विक्रमपुर में हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचारक थे। कृष्णदास ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में कौन थे? अष्ट सखी में से एक सखी, क्या नाम है? इंदुलेखा। वे वृंदावन में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर के भीतर एक समाधि है जो कृष्णदास के नाम से विख्यात है। कुछ लोग उसे कृष्णदास ब्रह्मचारी की समाधि बताते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कृष्णदास कविराज की समाधि। हम दोनों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वे दोनों ही इस युग में पतितों का उद्धार करने आए। शाखा निर्णय बताया गया। पुष्प गोपाल पहले किस नाम से विख्यात थे? गोपाल स्वर्ण ग्रामक। श्रीहर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ। श्रीहर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ। भंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ। भंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ। श्रीहर्ष 23वें शाखा, रघु मिश्र 24वें, लक्ष्मीनाथ पंडित 25वें, भंगवाटी चैतन्य दास 26वें, रघुनाथ 27वें शाखा थी। तात्पर्य गौर गुणोदय दीपिका में रघु मिश्र को कर्पूर मंजरी कहा गया। इस प्रकार लक्ष्मीनाथ पंडित को रसोन्मदा और बंगवाटी चैतन्य दास को काली बताया गया। शाखा निर्णय का कहना है कि बंगवाटी चैतन्य दास के नेत्र हमेशा आंसुओं से भरे रहते। उनके वंश की एक शाखा है, उसका नाम था मथुरा प्रसाद, रुक्मिणी कांत, जीवन कृष्ण, युगल किशोर, रत्न कृष्ण, राधा माधव, उषा मणि, वैकुंठनाथ, लाल मोहन शंखानिधि। लाल मोहन ढाका शहर के बड़े व्यापारी थे। गौर गुणोदय में लिखा गया है कि रघुनाथ पूर्व जन्म में वरांगदा थे। जब कोई नाम, जो सारे नाम याद करेगा ना, उसको खीर दिया जाएगा लेक्चर के बाद, सारे नाम कंठस्थ। ओके, अभी खाली अभी कितने श्लोक बचे? 96। अभी खाली 10 श्लोक बचे। अमोघ पंडित हस्ति गोपाल चैतन्य वल्लभ। अमोघ पंडित हस्ति गोपाल चैतन्य वल्लभ। यद गंगुलियार मंगल वैष्णव। यदु गंगुलियार मंगल वैष्णव। अमोघ पंडित 28, 29वें हस्ति गोपाल, 30वें चैतन्य वल्लभ, 31वें यदु गांगुली और मंगल वैष्णवी 32वें। तात्पर्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने निभाष्य में लिखते हैं, श्री मंगल वैष्णव मुर्शिदाबाद जिले के टिटकणा गांव के निवासी थे। उनके पूर्वज शाक्त थे। शाक्त का मतलब क्या था? शाक्त, शाक्त मतलब साग खाने वाले। शिव जी की पूजा करने वाले। हाँ, देवी की पूजा करने वाले। देवी। और वे किरीटेश्वरी देवी की पूजा करते थे। कहा था कि मंगल वैष्णव पहले बाल ब्रह्मचारी थे, किंतु घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने शिष्य प्राणनाथ अधिकारी की पुत्री से मयांगल ग्राम में विवाह कर लिया। इस परिवार के वंशज कांदड़ा के ठाकुर कहलाते हैं। कांदड़ा कटवा के निकट वर्धमान जिले का एक गांव है। यहाँ पर मंगल वैष्णव के छुटपुट वंशजों के 36 परिवार अभी भी रहते हैं। बाप रे। मंगल ठाकुर के प्रसिद्ध शिष्य हैं प्राणनाथ अधिकारी, कांदड़ा गांव के पुरुषोत्तम चक्रवर्ती, नरसिंह प्रसाद, जिनके परिवार वाले विख्यात मृदंग वादक हैं, सुधा कृष्ण मित्र, निकुंज विहारी मित्र, दोनों विशेष रूप से विख्यात मृदंग बजाने वाले। पुरुषोत्तम चक्रवर्ती के परिवार में कुंज बिहारी चक्रवर्ती, राधा वल्लभ चक्रवर्ती विख्यात, ये बीरभूम जिले में चैतन्य मंगल के गीतों को पेशावर ढंग से गाते। कहा जाता है कि जब मंगल ठाकुर बंगाल से जगन्नाथपुरी तक सड़क बनवा रहे थे, तो एक झील की खुदाई करते समय राधा वल्लभ की मूर्ति मिली। उस समय कांदड़ा नाम के स्थान में रानीपुर गांव में रह रहे थे। मंगल ठाकुर ये शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, वह आज भी कांदड़ा गांव में विद्यमान। कहाँ पर है? कांदड़ा क्या है? तत्काल। वहां पर वृंदावन चंद्र की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया गया। मंगल ठाकुर के 3 पुत्र थे, राधिका प्रसाद, गोपी रमन और श्याम किशोर। इन तीनों पुत्र के वंशज अभी भी जीवित। चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी। चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी। महाशाखा मध्ये ते हो सुदृढ़ विश्वासी। महाशाखा मध्ये वो सुदृढ़ विश्वासी। शिवानंद चक्रवर्ती 33वें शाखा है। वे दृढ़ विश्वास के साथ सदा कहाँ पे रहे? वृंदावन में रहे। और गदाधर पंडित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। कौन सी है शाखा? 33वें शिवानंद चक्रवर्ती।
गौड़दीपी के अनुसार शिवान चक्रवर्ती पहले कौन थे? लवंग मंजरी। लवंग मंजरी। कई जगह पे देखा सनातन गोस्वामी को लवंग मंजरी बोला। यदुनंदन दास द्वारा लिखित, बस खाली 6 मिनट हो रहे फिर। यदुनंदन दास द्वारा लिखित शाखा निर्णय में गदाधर पंडित की अन्य शाखाओं के नाम गिनाए गए। वो क्या है? माधव आचार्य, गोपाल दास, हृदयानंद, वल्लभ भट्ट, मधु पंडित। मधु पंडित ये प्रसिद्ध भक्त खरडा के निकट साईबोना गांव में रहते थे, जो खरडा स्टेशन से पूर्व दिशा की ओर है। इन्होंने वृंदावन में गोपीनाथ जी के मंदिर बनाए। मधु पंडित ओरिजिनल मधु पंडित, ये डुप्लीकेट नहीं, नकली नहीं। छठा है अच्युतानंद, सातवां है चंद्रशेखर, आठवां है वक्रेश्वर पंडित। ये सब किसके शाखाएं हैं? गदाधर पंडित के। गदाधर पंडित। भगवान आचार्य, अनंत आचार्य, कृष्णदास, परमानंद भट्टाचार्य, अवानंद गोस्वामी, चैतन्य दास, लोकनाथ भट्ट, गोविंद आचार्य, अक्रूर ठाकुर, संकेत आचार्य, प्रतापादित्य, कमलाकांत आचार्य, यादव आचार्य, नारायण परिहारी। ओके, अभी वो बोल रहे हैं सब करने के बाद यही तो संक्षेप कहिलु पंडित तेरा गण, संक्षेप कहिलु शाखार उपशाखार गणन। इस तरह मैंने गदाधर पंडित की शाखा और उपशाखा का संक्षिप्त में वर्णन किया। अब ऐसी कई शाखाएं जिनका उल्लेख मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम हो रहा है, 10:30 बजे एंड करना है, 5 मिनट में हमने संक्षिप्त का भी संक्षिप्त किया। पंडित तेरा गण सब भागवत धन्य, पंडित तेरा गण सब भागवत धन्य, पर श्री कृष्ण चैतन्य प्राणवल्लभ श्री कृष्ण चैतन्य। गदाधर पंडित के सारे अनुयायी महान भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण प्रिय हैं। उनके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है? गौरांगा। गौरांगा। एहि तीन स्कंदेर कैलु शाकार गणन, एहि तीन स्कंदेर कैलु शाकार गणन, जान सवारे स्मरणे भव बंध विमोचन। या सभा स्मरणे भव बंध विमोचन। की शाखा और उपशाखा का वर्णन किया। कौन से 3 जन है वो? नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर। और उसके पहले चैतन्य आपको कोई बताया था। उनके नामों को स्मरण करने से ही भवबंधन छूट जाता है। वो याद करता है, अरे वो कौन थे? हाँ, पंडित मिश्र। वो कौन थे? गदाधर पंडित। वो थे मधु पंडित। नाम याद करने से ही शुद्ध हो जाए। जान सबारे स्मरणे पाए चैतन्य चरण, यह सब स्मरणे सबारे है वांछिता पूर्ण, सारे वैष्णवों के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल तक पहुंच सकता है। निस्संदेह उनके पवित्र नाम को स्मरण करने से ही सारी इच्छाएं पूरी। अतः वे तान सवारे वंदीय चरण, माली रही लीला अनुक्रम, चैतन्य कही लीला अनुक्रम। उन सब के चरणों को नमस्कार करते हुए अब मैं माली रूपी चैतन्य महाप्रभु की लीला का क्रमवार वर्णन करूंगा। मतलब सबके चरणों प्रणाम करके, चैतन्य महाप्रभु माली है, गार्डनर है, अभी मैं उनका सिस्टमैटिक वर्णन करूँ। गौर लीलामृत सिंधु अपार अगाध, गौर लीलामृत सिंधु अपार पारिता अवगाह साध, के करीते पारिता अवगाह साध। की लीलाओं का समुद्र कितना अपार और अगाध है। ऐसे विशाल समुद्र को नापने का कौन साहस कर सकते हैं? कौन सा कितने किलोमीटर तक होगा महाप्रभु का समुद्र? अपार अगाध। और कोई ड्यूटी है जिन्होंने नहीं पढ़ा? ऐसा तो कोई नहीं है ना? मैंने नहीं पढ़ा प्रभु। क्यों? आप पहले क्यों नहीं पढ़ा माता जी? सब भक्त पढ़ रहे थे, फिर मैंने सोचा। ठीक है माता जी, पढ़िए। आपकी नम्रता, आपकी क्वालिफिकेशन, आप अगला वाला पढ़िए। ताहर माधुर्य गंधे लुब्ध है मन, ताहर माधुर्य एक कण, उस विशाल समुद्र में डुबकी लगाना संभव नहीं है, किंतु उसकी माधुर्य गंध मेरे मन को आकृष्ट करती है। अतः मैं उस समुद्र के तट पर केवल एक बूंद चखने के लिए खड़ा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। महाप्रभु के पार्षद को बताया गया समुद्र के समान है, और मैं क्या कर रहा हूँ? समुद्र के एक बूंद को चखने का प्रयास कर।
लास्ट श्लोक और कोई है जिन्होंने नहीं पढ़ा? श्री रूप रघुनाथ पद जार आशा श्री रूप रघुनाथ चरितामृत कहे कृष्ण दास चैतन्य चरितामृत। कोई है जिन्होंने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ लिया क्या? इसने भजन प्रभु आप पढ़ना चाहते हैं लास्ट वाला? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यस लास्ट रूप रघुनाथ पदे जा रहा है। यस प्रभु जी, फेवरेट श्लोक। अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 12वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित के अंशों का वर्णन है। एक्चुअली कृष्ण भजन प्रभु को भगवान ने वही सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताया, क्योंकि इसमें क्या बताया गया, कैसे गुरु की वंदना करने से उनकी कृपा की आकांक्षा करना ही इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा बड़ा फिलोसफी आता है, कितने बड़े प्रीचर हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रभु जी ने पॉइंट को हाईलाइट किया कि वैष्णव की और गुरु की कृपा की आकांक्षा करने और उनके पद चिन्ह में चल रहा हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं बोला, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने मुझे सुनाया वही मैं लिपिबद्ध कर रहा हूँ। तो आज सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, हमको 10:30 बज गया, लेकिन आज क्योंकि महाराज का भी क्लास था। अभी आगे का ऐसा पैटर्न रहेगा कि हमारे पास अभी 13 से 17 5 अध्याय हैं, और कितने दिन बचे हैं गौर पूर्णिमा को? 13, 14, 15, 16, 20 दिन है। पूरे 20 दिन है। 20 दिन है, तो अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा करेंगे, एक एक 3-3 दिन में एक अध्याय, 3 या 4 दिन में एक अध्याय हो जाना चाहिए, इससे तो इजीली हो जाएगा। तो क्योंकि कोई कोई दिन आएंगे जो फेस्टिवल होगा या कोई दूसरे कारण से क्लास में होगा, तो ऐसे एवरेज रखेंगे। और शाम के समय का चर्चा चल रहा है, शाम को 6 अध्याय पूरे हो गए जितने भागवत के, तो अध्याय नंबर 10 से लेके अभी 17, 6 कितना कल 6 पूरा हो गया, तो 7 से 17 11 अध्याय हैं, तो वो हम शाम के समय पूरा कर लेंगे, ऐसे हमारा प्लान। ये हम लोग 2 मिनट कीर्तन करेंगे, जैसे कि आज महाराज ने लेक्चर में बताया होली नेम का सुंदर वर्णन, वही है जो महाराज लास्ट में बता रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 सब लोग एक साथ बोलिए एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व तत्व पंचतत्व पंचतत्व देव जय प्रहलाद महाराज देव प्रहलाद महाराज जय नरसिंह नरसिंह प्रहलाद नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद की जय राधा माधव की जय अच्छे सचिव जय पाल की जय श्री पंच जय नरसिंह प्रहलाद महाराज जय जय श्री राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम His Grace Krishnan, His Grace Krishnan Prabhu जी की जय 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 सब लोग को एक आइडिया है कि ये हॉल खाली पड़ा है, हॉल में जब करें या वो मायापुर चंद्र के सामने ज्यादा अच्छा था जब मायापुर चंद्र यहाँ क्या फायदा है कि मैं बिना रुकावट के कर सकता हूँ, एकदम ठीक है वहाँ पे ब्रिटिश का सामने होना अच्छा है। चलो हम लोग ऊपर जाएंगे, डिसाइड किए मायापुर चंद्र का ही दर्शन करेंगे। तो जरा ये करो स्टैंड छोटा कर देते हैं। स्ट्रीमिंग चालू रहेगा प्रभु जी? क्या हुआ प्रभु जी? लाइव स्ट्रीमिंग चालू रहेगा? हाँ 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 चालू रहेगा। किसने भैया तो पूछ रहे हैं? हाँ जब तक आप बोलोगे तब तक चालू रखेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के प्रलय के समय एंड करना होगा। क्या आप पूछ रहे हो? लाइव सेशन पूछ रहे हो क्या? हाँ लाइव चालू रहेगा क्या बोलो? लाइव उतना जरूरी नहीं है, मालूम नहीं। जैसे मैं कौन है कुछ लोग